نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم ایک ذہین افیسر ہو۔ میں نے سنجیدگی سے بات بنانے کی کوشش کی۔ دراصل میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، اپنے ذاتی معاملے میں۔ کیا وہ بات کل نہیں ہو سکتی؟ میں سارا کے سامنے اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک خاص وجہ سے میرا فوری طور پر ہندوستان جانا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے جین کے فارم ہاؤس سے گلو خلاصی حاصل کی ہے۔ اسے میرے جانے کا علم ہو جاتا تو کبھی ہوٹل منتقل ہونے کی اجازت نہ دیتی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تمہیں پہلے میرے ایک اہم معاملہ سلجھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن لندن میں میرا قیام ہفتے بھر سے زیادہ ممکن نہیں۔ میں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی خاطر کہا۔ میرے بعد تمہیں جین کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد واپس لوٹ آؤں۔ اس کے علاوہ بھی مجھے تمہاری 10 شرطیں منظور ہیں، لیکن تمہیں ہر قیمت پر پہلے مجھے درپیش گتھی سلجھانی ہوگی۔ جم سے رابطہ منقطع کرنے کے بعد بھی میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ بات الجھتی نظر آ رہی تھی۔ ولیم کسی قیمت پر اپنے معاملے میں مارٹینا والے حادثے کی تشہیر پسند نہیں کر رہا تھا، اور جم اپنے مفاد میں مارٹینا کے قتل کا سبب اور قتل کی شخصیت کو سامنے لانے کی جان توڑ کوشش میں لگا تھا۔ میرا فیصلہ اپنی جگہ تھا۔ میں جین کی وجہ سے ولیم کو نہ صرف اس کا جائز حق دلانا چاہتا تھا، بلکہ جین ہی کی وجہ سے جیکب کا نام درمیان میں نہیں لانا چاہتا تھا، جسے انکا کی پرسرار قوتوں نے محکمہ سراغرسانی والوں کے لیے ایک لاہے عمل بنا دیا۔ مجھے اس تکون کے بیچ کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انکا ہوتی تو پلک جھپکتے میں سارے مسئلوں کا حل نکل آتا۔ وہ ولیم کی جائیداد کا فیصلہ کرانے کی غرض سے 5 دن کا کہہ کر گئی تھی، لیکن اسے اپنے مقصد کے حصول میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا تھا۔ بات اگر صرف ولیم کے حقوق کی ہوتی تو کام آسان تھا، لیکن مارٹینا لیونارڈ کے علاوہ اپنے سابقہ مرحوم شوہر کی جائیداد پر بھی قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے لواحقین بھی سامنے آ سکتے تھے اور بات طول پکڑ جاتی۔ ایک وقت میں کئی سروں پر پھدکتے پھرنا انکا کے لیے دشوار نہیں تھا، لیکن عدالت کی کارروائی، وکیلوں کی بحث، گواہوں کے بیانات اور قانونی مشگافیوں میں بھی وقت صرف ہو سکتا تھا۔ ذہن کو سکون دینے کی خاطر میں نے میلبا کو طلب کیا۔ وہ میرے اندازے سے زیادہ تجربے کار اور معاون ثابت ہوئی۔ میں نے اسے انعام دینے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ گئی رات تک وہ میرے پہلو میں بیٹھی خوبصورت باتیں کرتی رہی، سر سہلاتی رہی، اپنے قرب کی تپش سے میرے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون بخشتی رہی۔ پھر وہ کسی وقت میرے پاس سے اٹھ کر گئی، مجھے یاد نہیں۔ دروازے سے بلند ہونے والی پرشور آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ کوئی شدت سے متواتر دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں جس لباس میں تھا اسی میں اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر ہوٹل کا مینیجر ایک باوردی پولیس افیسر اور 2 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ میلبا بھی ایک طرف سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ ہوٹل کے 1-2 کارندے بھی تھے۔ میں ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ صبح 8-9 بجے کے درمیان کسی ہوٹل کے دروازے پر پولیس کی موجودگی خالی از علت نہیں ہو سکتی تھی۔ مسٹر دولت علی آپ ہی ہیں؟ پولیس افیسر نے مہذب لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہوٹل کے جنرل مینیجر کا بیان ہے کہ محکمہ سراغرسانی کے ایک معزز لیڈی افیسر مس جین مرینڈا نے آپ کا خیال رکھنے کے لیے خاص طور پر فون کیا تھا۔ پولیس افیسر نے مجھے سرتاپا گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ مس جین کو کس طرح جانتے ہیں؟ یہ میرا قطعی نجی معاملہ ہے، میں نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ میں غیر ضروری سوالات کے جوابات دینے کا عادی نہ ہوں۔ آپ اس وقت اپنے آنے کا مقصد بیان کریں۔ میرے لہجے کی تلخی میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ پولیس افیسر کے چہرے پر بھی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر سہولت سے بات نہیں کر سکتے؟ اس نے مجھے تیکھے انداز میں مخاطب کیا۔ سوری، میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ تم نے مجھے سوتے میں ڈسٹرب کیا ہے۔ میں اس وقت اخلاق کی جھوٹی نمائش نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب
तलाशी के बाद दिया जाएगा। पुलिस अफीसर ने जेब से सर्च वारंट निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया। सर्च वारंट देखकर मेरा जहन भक से उड़ गया। मेरा दिल चाहा कि इस कागज के हस्कीर टुकड़े के उसके मुंह पर मार दूं, उन्हें कबल अज वक्त बावर करा दूं कि जमील अहमद खान को छेड़कर वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। लेकिन मैं खून के घूंट पी कर चुप रहा। रात मैंने पिब में इसीलिए किसी हंगामे से गुरेज किया था। मैं अखबार की शय सुर्खियों में नहीं आना चाहता था। मैं उलझ जाता तो हिंदुस्तानी वापस में देर हो जाती। मैं दरवाजे के सामने से हट गया। वो कमरे में आ गए। फिर मेरे जहन में इनका रानी का ख्याल उभरा। उसने रुखसत होते वक्त खास तौर पर ताकीद की थी कि मैं सफरी बैग से करेंसी नोट निकाल कर उसे मेलबा को वापस कर दूं। इनका अंधेरों में दूर देखने की आदत थी। उसने महसूस कर लिया होगा कि सफरी बैग में कमरे में मौजूद होने की सूरत में मेरी उलझन बढ़ सकती है। मैं विलियम से गुफ्तगू में ऐसा महू रहा कि इनका की हदायत पर अमल ना कर सका। अब वक्त निकल चुका था। पुलिस अफीसर को ज्यादा उठक पटक नहीं करना पड़ी। सफरी बैग उसे पहले अलमारी खोलते ही मिल गया। उसकी आंखें चमक उठी। मेरे करीब आकर उसने बैग फिजा में बुलंद करके मेरी नजरों के सामने कर दिया। मुजरिम को नर्वस करने का यह भी एक अंदाज होता है। पुलिस अफीसर का ख्याल था कि मैं बैग के दस्तयाब होते ही गड़बड़ा जाऊंगा, हाथ पैर छोड़ दूंगा। अगर उसने ऐसा सोचा था तो ये उसकी भूल थी। मैंने चेहरे से किसी तासर का अजहार नहीं होने दिया। मेरी निगाहों में तलखियों का रंग और गहरा हो गया। ये बैग किसका है मिस्टर दौलत अली? उसने जहर खान से पूछा। तुमने इसे मेरे कमरे से हासिल किया है, इसलिए मेरे सिवा और किसका हो सकता है? मैंने दबंग आवाज में जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं इस बैग में क्या है? खुलकर बात करो अफीसर, मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। तुम इस मामूली सफरी बैग से क्या साबित करना चाहते हो? तुमने इस बैग को, जिसमें 100 के पाउंड के नए नए नोटों की गुड्डियां मौजूद हैं, चोरी किया है। पुलिस अफीसर का लहजा यकलख्त करख्त हो गया। मैं तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। होश करो अफीसर, मैंने उसे चैलेंज किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बैग मैंने चोरी किया है? सबूत ये बैग बेजाते खुद है। इसके गवाह ये लोग हैं जिनकी मौजूदगी में मैं तुम्हें हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले चलूंगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुम सब कुछ उगल दोगे। अपनी औकात से तजावुज मत करो अफीसर। मेरे अंदर लाजवाल कुव्वतें कसमसाने लगी। तुम एक मुअज़्ज़ज़ शख्स की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं रखते। मेरी आवाज में घन गर्ज पैदा होने लगी। बगैर किसी ठोस सबूत के तुम मेरे खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ हित्तके इज्जत का दावा दायर करने का हक रखता हूँ। पुलिस अफीसर मेरी दीदा दिलेरी पर बल खाकर रह गया। मेलबा भी मुझे हैरत से घूरने लगी। हमारे मुल्क में कानून और अदालती इंसाफ बड़ा साफ शिफाफ होता है मिस्टर दौलत अली। पुलिस अफीसर, जिसका नाम लोइस आर्थर था, इंतहाई सर्द लहजे में बोला। मैं समझ रहा हूं कि तुम मज़ाहमत की फजूल कोशिश क्यों कर रहे हो। ये हरबे तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। उसने अल्फाज चबाते हुए बात जारी रखी। तुम्हारी इतला के लिए ये भी बता दूं कि मिस जीन मारंडा, नहीं, मैं तुम्हें किसी और का नाम दरमियान में लाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने मुट्ठी भींचकर बेमुश्किल गुस्से पर काबू पाते हुए एहतजाज किया। तुमने मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम आयद करने की कोशिश की है। इसे साबित किए बगैर तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। पुलिस अफीसर ने मुझे एक लम्हे को बेहद गौर से देखा। मेरे लहजे की तुर्खी और तलख कलामी से उसके एतमाद को ठेस पहुंची। उसका अंदाजा था कि मैं बैग सामने आ जाने के बाद हथियार डाल दूंगा। मिस्टर दौलत अली, उसने कुछ तवक्कुफ के बाद सलसलाते लहजे में सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि इस बैग में कितनी रकम मौजूद है? नहीं, मैंने सदमहरी का मुजाहरा किया। मैं जाती अखराजात का बाकायदा हिसाब किताब रखने का आदी नहीं हूँ। कोई अंदाजे वो लगाते हैं जिन्हें खुद पर एतमाद नहीं होता। क्या तुमने इस बैग से कुछ रकम निकाल कर खर्च भी की है? उसने पैंतरा बदला। मुझे मालूम हुआ है कि कल शाम तुमने कुछ वक्त होटल से बाहर भी गुजारा है। मुमकिन है शॉपिंग भी की हो। अमकानात की बात करके तुम अपनी कमजोरी का सबूत दे रहे हो। मैंने उसे चढ़ाने की कोशिश की। जिम्मेदार पुलिस अफीसर ठोस
और दो टोक बात करने के आदी होते हैं। हमने उस काउंटर क्लर्क को भी हिरासत में ले लिया है जिसने मेलबा के जरिए ये बैग तुम तक पहुंचाया था। उस बार उसने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैंने बड़ी डटाई से कहा, हो सकता है कि तुम जिस काउंटर क्लर्क की बात कर रहे हो उसने गलती से तुम्हें मेरे कमरे का नंबर बता दिया हो। पुलिस अफीसर ने मुझे चुभती नजरों से घूरा। क्या तुम शराफत से हमारे साथ ताआवुन नहीं करोगे? तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बेहिदा और फजूल गुफ्तगू के कुछ गवाह भी कमरे में मौजूद हैं जो अजाला हसीयत अरफी के मुकदमा में मेरे लिए बेहद कार आमद साबित होंगे। पुलिस अफीसर मेरी ढटाई पर तलमला गया। उसने एक सिपाही को होंठ काटते हुए इशारा किया जो हाथ में फाइल दबाए खड़ा था। अफीसर का इशारा पाकर उसने फाइल से एक फोटो स्टेट की हुई फहरिस्त निकालकर मेरे हवाले कर दी। मैंने कागज पर गौर किया तो एक सानी को घबरा गया। उस पर अंग्रेजी हरूफ के साथ साथ कुछ नंबरों का अंदराज भी था। मैं समझ गया कि ये उन नोटों के नंबर थे जो बैग में मौजूद थे, जिसे अभी तक खोला नहीं गया। जिसे बैंक ने वो लिस्ट जारी की थी उसका नाम भी जली हरूफ में नजर आ रहा था। बैंक मैनेजर के दस्तखत और मोहर भी मौजूद थी। मेरे खिलाफ जो सबूत थे उसमें कोई झोल नहीं थी। कबल इसके कि मैं कुछ कहता, पुलिस अफीसर की तेज आवाज मेरे कानों में दोबारा गूंजी, क्या तुम अब भी मज़ाहमत का इरादा रखते हो? नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। तुम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करो। मेरा लहजा बेतदरीज सर्द होता गया। मैं समझ रहा हूँ कि तुम किसी कमाश के अफीसर हो। मैं अब भरी अदालत में तुम्हें तुम्हारी हैसियत का एहसास दिलाऊंगा। हिंदुस्तान होता तो मेरे सख्त जुमले की पादाश्त में मुझे किसी काल कोठरी में बंद करके पहले मुझे मादरजात बरहना किया जाता, फिर रुई की तरह धुंक दिया जाता। कोई रहम नहीं किया जाता। अगर मर जाता तो खामोशी से रातों रात मुझे जलाकर मेरी राख दरिया बुर्द कर दी जाती। जिंदा रहता तो जोदो कूब के नतीजे में नाकाबिले मुरम्मत जिस्मानी टूट फूट से तंग आकर जिंदगी की आखिरी सांस तक मौत की दुआएं मांगता रहता। लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं, लंदन था, जहां मुजरिमों के साथ उस वक्त तक इंसानियत सलूक नहीं किया जाता जब तक वो अद खुद अपने जुर्म का इकरार ना करे या अदालत कोई हतमी फैसला ना सुना दे। पुलिस अफीसर ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। बैग से करेंसी नोट निकालकर उन्हें गिना गया। उसके सारे नंबर फहरिस्त से मिलते थे। सिर्फ वो करेंसी नोट कम था जो मैं खर्च कर चुका था। मैं सोफे पर आराम से बैठा कागजी कार्रवाई देखता रहा। मेरी मौजूदगी में मशीरनामा तैयार किया गया। गवाहों के दस्तखत और बयान लिए गए। मेलबा ने उस सफरी बैग के सिलसिले में वही बयान दिया जो पहले मुझसे दे चुकी थी। उसने काउंटर क्लर्क के कहने पर वो बैग मेरे कमरे तक पहुंचाया था। मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। मैं चाहता तो पुलिस के करिंदे अंधे हो जाते। वो सारी जिंदगी कमरे की एक एक शय को उलटते फिरते, लेकिन बैग उनके हाथ ना लगता। मैं उन्हें अपनी कुव्वतों के जरिए दरवाजे ही से वापस लौटा सकता था। मैं एक इशारा करता, पुलिस अफीसर मेरे तलवे चाटने लगता। सारी कागजी कार्रवाई धरी की धरी रह जाती। मेरे लिए सब कुछ मुमकिन था। मैंने बद्री नारायण और उसके चेलों को पूरे हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं लेने दी थी। मैंने भी अपना बहुत कुछ खोया था, लेकिन जीत मेरी ही हुई। बद्री नारायण आखिर कुत्तों की मौत मारा गया। जिम के फार्म हाउस में क़याम के दौरान मैंने इर्तकाज और मराकबे की मशकें करके खोई हुई कुव्वतें दोबारा हासिल कर ली थी। पिब के बाहर अडगर का अंजाम उस बात की दलील थी कि प्रीतम लाल की आत्मा भी मेरी पुष्ट पनाही कर रही है। मैंने इनका रानी को आवाज देता, वो सारे काम छोड़कर वापस आ जाती। पुलिस अफीसर और उसके साथ तिगनी का नाच नाचने वाले। लेकिन मैंने जानबूझकर दर गुजर से काम लेने की ठान ली। डुगडुगी बहरहाल मेरे हाथ में थी। मैं जब चाहता उसे बजाने लगता। वो सब उसकी ताल पर थिरकने लगते। हर बात मेरे इख्तियार में थी, लेकिन मैं जबत से काम ले रहा था। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। पुलिस के अफीसर के चेहरे पर फातराना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मुझे हकारत से घूरकर बड़े जहरीले लहजे में बोला, क्या तुम उठोगे या मुझे अपने कारिंदों को तुम्हारी डंडा डोली करने की जहमत देना पड़ेगी? पुलिस अफीसर का लहजा तज़हीक अमीज था। मैंने उसे खशमगी नजरों से घूरा। मेरे अंदर अथल फथल शुरू हो गई।
मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेलबा मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। कल रात वो मेरी बाहों में खेल रही थी। इस वक्त मुझे पुलिस के सामने बेबस देखकर उसके दिल पर जाने क्या गुजरी होगी। मेरे जिस्म पर शब ख्वाबी का ढीला ढाला लिबास मौजूद था। तुम चलो अफीसर, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। मैंने सर्द लहजे में पुलिस अफीसर को मुखातब किया। उसने बड़ी फुर्ती से रिवाल्वर निकालकर मुझ पर तान लिया। तुम इसी लिबास में मेरे साथ चलोगे। उसका लहजा तहकमाना हो गया। हथकड़ी पहनकर उसने एक सिपाही को इशारा किया। वो हथकड़ी लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे उन नादानों के अंजाम पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था। मैं तेवर बदल लेता तो मेरी आतिशे इंतकाम से चटकने वाली चिंगारियां शहद की मक्खियों की तरह लिपटकर उसके जिस्म को बम्बोर डालती, लहूलुहान कर देती। उन्हें भागने का रास्ता ना मिलता। वो जमीन पर घुटने टेक कर गड़गड़ाने लगते, मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर देते, लेकिन मैं जबत से काम ले रहा था। पुलिस अफीसर ने जीन मारंडा का नाम लेकर मुझे कमजोर कर दिया था। मैं कानून से ताकत के दो दो हाथ कर लेता तो जीन बिला वजह बदनाम होती और मुझे उसकी रुसवाई मंजूर नहीं थी। सुनो अफीसर, मैंने दिल पर जबर करके कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन कड़ी पहनाने का हुक्म वापस ले लो। ये मेरी तौहीन होगी। एक मुल्ज़म की जुबान से तौहीन का लफ्ज़ सुनकर मुझे हंसी आ रही है। उसने तौहीन अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मुझे अच्छे लगे हो दौलत अली। मुझे अगर वक्त मिला तो तुमसे जेल में भी कभी कभी मुलाकात के लिए जरूर आऊंगा। पानी सर से ऊंचा होने लगा। सिपाही ने करीब आकर मेरे हाथ थामने की कोशिश की तो मैंने हाथ झटक दिया। वो जमीन पर दूर जा गिरा। मैंने अपनी तमाम मख्फी कुव्वतों को आंखों में समेटा। मैं पुलिस अफीसर को बताना चाहता था कि उसने जमील अहमद खान पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दी है, लेकिन उसी लम्हे एक मानूस नस्वानी आवाज मेरे कानों में गूंजी, दरगुजर से काम लो जमील। इस समय किसी शक्ति का चमत्कार जीन की राह में दुश्वारियां खड़ी कर देगा। मैं तड़प कर रह गया। वो मेरी कुलदीप की आवाज थी। मैंने मचल कर कहा, ये मुझे लोहे का जेवर पहनाने की बात कर रहे हैं। क्या इन हरामजादों की बात मान लूं? मैं तुम्हें सिर्फ खून खराबे से रोक रही हूँ, कुलदीप ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया। मैं जानती हूँ जमील, तुम हथकड़ी पहनकर लोगों के सामने जाओगे तो तुम्हारा अपमान होगा। फिर मैं क्या करूं? मैंने तलमलाकर पूछा। दूर अंदेशी से काम लो। महाराज की शक्ति भी तुम्हारे साथ है। निराश मत हो, धीरज से काम लो। मैंने कुलदीप को फिर मुखातब किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसकी रूह को ज्यादा देर ठहरने की इजाजत नहीं थी। पुलिस अफीसर ने मेरी वहशत देखकर करख्त और सफाक लहजा इख्तियार किया। दौलत अली, हमें सख्ती पर मजबूर ना करो, वरना तुम्हें जैसे मुजरिमों को सीधा करने के और भी तरीके आते हैं। मेरी बात मान लो, शराफत से हथकड़ी पहन लो। मैंने बेबसी से होंठ भींच लिए। कुलदीप की आत्मा ना आती तो क्यामत आ जाती। मैं पुलिस अफीसर को जलाकर राख कर देता। इस होटल को राख का ढेर बना देता जहां मेरी तौहीन हुई थी। सब कुछ तहस नहस कर डालता। फिर जो भी होता। जमीन पर गिरे हुए सिपाही ने उठने में देर नहीं लगाई। उसकी निगाहों से नफरत झांक रही थी। वो डैल डोल में मुझसे ज्यादा था, इसलिए धोखा खा गया। पुलिस अफीसर के इशारे पर दूसरा सिपाही भी अपने साथी की मदद को आगे बढ़ा। मैंने इस बार मज़ाहमत नहीं की। एक सिपाही ने मुझे हथकड़ी पहना दी, फिर अपने अफीसर से बोला, सर ये टटना है, इसका बाएं हाथ मसनूई है। ओह, पुलिस अफीसर ने गर्दन हिलाते हुए संजीदगी का इजहार किया। हमें छानबीन करते वक्त ज्यादा एहतियात करनी होगी। हो सकता है कि यह सर्द खानों में पड़ी हुई मफरूर मुजरिमों की फाइलों में से एक हो। अगर ऐसा हुआ तो हम यकीनन एक बड़े इनाम के मुस्तहिक होंगे। मैंने होंठ सख्ती से भींच लिए। जाने के इरादे से कदम उठाए तो दरवाजे के सामने जमा लोग काई की तरह छट गए। अफीसर रिवाल्वर ताने मेरे साथ था। मुझे नीचे ले जाने की खातिर मुसाफिरों की बजाय सामान वाली लिफ्ट इस्तेमाल की गई। मैं लिफ्ट पर बाहर आया। लाउंज में खासी भीड़ थी। मैं पुलिस अफीसर के साथ कदम बढ़ाता हुआ तेजी से बाहर आ गया। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अफीसर के अलावा सिपाही भी सूरत हाल से बेखबर थे। बाहर पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। मुझे पिछली नशस्त पर दोनों सिपाहियों के दरमियान बिठाया गया। अफीसर अगली सीट पर बैठ गया।
गाड़ी हरकत में आई तो मैंने दाहिने हाथ में दबी हुई हथकड़ी ऑफिसर की गोद में उछालते हुए संजीदगी से उसे मुखातब किया। इसे संभाल कर रखो ऑफिसर, फिर किसी और के काम आएगी। हथकड़ी देखकर पुलिस ऑफिसर के अलावा दोनों सिपाही भी इस तरह चौंके जैसे अभी तक ख्वाबे गफलत से दो चार थे। पुलिस ऑफिसर ने बड़ी सूरत से पलटकर मुझे बगौर देखा। उसकी आंखें पिटपटाने लगी। जो कुछ हुआ वो कम अज कम उसके लिए जरूर नाकाबिले यकीन था। मैंने किसी तासर का इजहार नहीं किया। सीट की पूछ से सर टिकाकर कुलदीप के बारे में सोचने लगा, जिसने बर वक्त मदाखलत करके सही सिमत में मेरी रहनुमाई की। मेरी ताकत के एक ही करिश्मे ने उसके सारे कसबल निकाल दिए। पुलिस ऑफिसर आर्थर रास्ते पर खामोश बैठा, किसी सोच में गुम रहा। मेरे दाएं बाएं बैठे दोनों सिपाही भी बार बार इन अखियों से मुझे देख रहे थे। रास्ता किसी उदम चौकड़ी के बगैर कट गया, मगर मुझे पुलिस ऑफिसर ने ले जाकर लाप अप कर देने के बाद आर्थर फिर शेर होने लगा। दौलत अली, तुमने हथकड़ी हाथों से उतारने का जो मुजाहरा किया है वो इस अमर की दलालत करता है कि तुम्हारा ताल्लुक यकीनन किसी खतरनाक बैनुल अक़वामी तंजीम से है। हम बहुत जल्द तुम्हारी असल शख्सियत का सुराग लगा लेंगे। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी मतवक्का कामयाबी पर पेशगी मुबारकबाद पेश कर सकता हूँ? मैंने बदला संजी से काम लिया। 2-4 घंटे और इत्मीनान का सांस ले लो, वो तलमलाकर बोला। कोर्ट के सामने पेश करने के पहले हम तुम्हारा जिस्मानी रिमांड हासिल करके मैं फिर इत्मीनान से तफसीली गुफ्तगू होगी। मैंने जवाब में उसे मुस्कुराकर देखा, फिर बेंच पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गुडमुड हो रहे थे। मैं अपनी कुव्वतों के जरिए उस फाइल को जलाकर राख भी कर सकता था जो आर्थर ने बड़ी मेहनत और जानफशानी से तैयार की थी। मशीरनामा, गवाहों के बयानात, करेंसी नोट और सफरी बैग, सब कुछ राख हो जाता। आर्थर टापता रह जाता, सिर्फ नोटों के हरूफ और हिंदसे तब्दील कर देता तो पुलिस को जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। मैं उन पर हित्त के इज्जत का दावा कर देता। झूठा मशीरनामा तैयार करने पर आर्थर को सजा हो जाती। मेरे किरदार पर कोई दाग ना आता और भी बहुत कुछ मुमकिन था, मगर मैंने तहम्मुल से काम लिया। कुलदीप की भटकती हुई आत्मा ने कहा था कि अगर मैंने कोई हंगामा किया तो जीन के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मैंने कुलदीप की बात मान ली। 2 घंटे बाद मुझे कोर्ट में पेश किया गया। जज ने मेरी फाइल का बेगौर मुताला किया। एक एक कागज उलटता पलटता रहा, फिर उसने फाइल बंद करके मुझे सर से पांव तक देखा। निगाहों निगाहों में तोलता रहा, अपने म्यार की खास कसौटी परखता रहा, फिर मुहज्जब लहजे में बोला, मिस्टर दौलत अली, हमारी पुलिस ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? जी नहीं, मैंने मुख्तसर कहा। क्या तुम अपना जुर्म तस्लीम करते हो? मैं फिलहाल इस ज़मन में कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने सपाट लहजा इख्तियार किया। केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी तो खुलकर दो बदू बातें करने में ज्यादा लुत्फ आएगा। तुम्हें फाइल की तैयारी में हमारे तफ्तीशी अफीसर से कोई शिकायत है तो बयान कर सकते हो। जज ने मुझे एक और मौका दिया। सॉरी मीलाड, मैंने ज़ाहिर खान से जवाब दिया। मैं अपने तुरुप के पत्ते कबल अज वक्त इस्तेमाल करने से गरेज करूंगा। पुलिस ने 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की है। तुम्हें इस सिलसिले में भी अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया जाता है। शुक्रिया लॉर्ड। आप मैंने उस बार किसी कदरे संजीदगी से कहा, फाइल आपके सामने है। मिस्टर आर्थर ने मेरे खिलाफ कानून का घेरा तंग करने में किसी बुखल से काम नहीं लिया। सारी दस्तावेजात मुकम्मल हैं। पुलिस ने मेरे बचाव के लिए कोई चोर रास्ता नहीं छोड़ा होगा। बड़ी दयानतदारी से अपना फर्ज अदा किया है। उनका कहना है कि सारे सबूत इंतहाई ठोस और मरबूत हैं। मैं सजा से नहीं बच सकूंगा। मैंने एक लम्हे को गर्दन घुमाकर लोइस आर्थर की सिमत देखा। वो अब बड़े अदब से अटेंशन पोजीशन में खड़ा था। मैं जज से दोबारा मुखातब हुआ। मिस्टर आर्थर ने मेरे साथ अभी तक कोई बदसलूकी नहीं की। मेरा ख्याल है कि ये एक जिम्मेदार, फर्जशनास और तजर्बेकार अफीसर हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर थोड़े तवक्कुफ के बाद मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराते हुए बात जारी रखी। तमाम दस्तावेज अपने सामने मुकम्मल कराने के बावजूद अगर आपके मुअज़्ज़ज़ अफीसर को मेरे जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत भी है तो इन्हें हस्बे अंशा इसका मौका दिया जाए। जज ने कसम खाकर मुझे
बंजर गौर से देखा, वो मेरे जुमले की गहराई तक पहुंच गया। हाथ दबे कलम को पुरख्याल अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर फाइल पर मारता रहा। उसके चेहरे तासरात की गमाजी कर रहे थे कि वो रिमांड के हक में नहीं है। कुछ गौर खोज के बाद उसने आर्थर को मुखातब किया। ऑफिसर, आप जिस्मानी रिमांड की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? यस यू ऑनर, आर्थर ने दबक आवाज में जवाब दिया। क्या फाइल में मौजूद कागजात के अलावा भी कुछ सबूत की तलाश है? यस यू आर ऑनर, आर्थर ने किन आंखों में मुझे देखते हुए अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। हमें मुलज़म के साबिक चाल चलन की छानबीन भी करनी होगी। हो सकता है कि सर्द खाने में पड़ी हुई कोई डेड फाइल दोबारा हरकत में आ जाए। मैं आपके जुमले की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। फादर जज ने संजीदगी से अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। यू ऑनर, आर्थर ने वजाहत शुरू की। मुलज़म की गिरफ्तारी के वक्त ये अहम बात हमारे इल्म में आई है कि इसका उल्टा हाथ कोहनी के पास से कटा हुआ है। इसकी जगह मसनूई हाथ लगाया गया है। अक्सर मुस्लिम ममालिक में कोहनी या कलाई के पास से सीधा या उल्टा हाथ काट देने की सजा राइज है। इस सजा का अतलाक इन मुजरमों पर होता है जो या तो किसी संगीन जुर्म में मुलव्वस पाए जाते हैं या किसी अखलाक कम ज़रफ़ी के घनौने मर्ज का शिकार हो जाते हैं। अक्सर बैनुल अक़वामी तंजीमों के मफरूर मुजरम भी फिंगरप्रिंट्स ज़ाया करने की खातर बिदाते खुद हाथ कटवाने की अज़ियत को खुशी खुशी गवारा कर लेते हैं। ऐसे अफराद को कानून की असलाह में ख़तरनाक मुजरम कहा जाता है। आर्थर मेरा बयान हाथ कटा होने की राय से फ़ायदा उठा रहा था। वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था वो मेरे खून की गर्दिश को तेज़ करने के लिए बहुत काफ़ी थे। वो बदबख्त मुझ पर अखलाकी कम ज़रफ़ी और घनौने मर्ज का इल्ज़ाम पूरी खूबसूरती से तराश रहा था। मैंने निचला होंठ पूरी शिद्दत से दांतों तले भींच लिया। मेरे होंठ हिल जाते तो तहलका मच जाता, बगटर शुरू हो जाती, अदालतों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। आर्थर को इस घटिया वजाहतों का एक और सबूत मिल जाता। मैं उसे तीखी नज़रों से घूरता रहा। मैंने अपने दिल में उसकी एक इबरतनाक सजा देने की ठान ली। मैंने फिलहाल सिर्फ 1 हफ्ते के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। आर्थर ने किसी घाघ अफीसर की तरह बड़ी मासूमियत से कहा। हो सकता है कि हमें कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए कुछ मजीद वक्त भी दरकार हो। हालात पर मुनअसर है। उसने शाने उचकाते हुए बात खत्म की। जज कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मेरी जानब देखा। मिस्टर दौलत अली, क्या आप अदालत को ये बात बताना पसंद करेंगे कि आपका हाथ काटे जाने की असल वजह क्या थी? मुझे एक कार एक्सीडेंट के बाद ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। डॉक्टरों का मशवरा था कि अगर हाथ ना काटा गया तो ज़हर बात का खतरा लाहक हो सकता है। मैंने ईमानदारी से हकीकत बयान की। फिर आर्थर को देखकर जज से दोबारा मुखातब हुआ। मैंने जो सच्चाई बयान की है उसका कोई कागजी सबूत नहीं है मेरे पास। ये भी मुमकिन है कि मिस्टर लोइस आर्थर और कानून की नज़रों में धूल झोंकने की खातर गलत बयानी से काम ले रहा हूँ। मेरे लहजे में जहर की तलखी सरायत कर गई। अखलाकी कम ज़रफ़ी और घनौने मर्ज में मुब्तला शख्स अपने आप को कानूनी शिकंजों से महफूज रखने की खातर हमेशा ओछे हथकंडे इख्तियार करता है। मोहब्बत और जंग में तमाम हरबों का इस्तेमाल जायज़ है। फादर जज को मेरी गुफ्तगू का अंदाज पसंद नहीं आया। उसने बुरा सा मुंह बनाकर पुलिस की दरख्वास्त पर 7 यौम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म सादर कर दिया। आर्थर का सीना कुछ और चौड़ा हो गया। मैं उसकी बदनसीबी पर मुस्कुराने लगा। वापसी पर हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। मुझे पुलिस स्टेशन लाकर दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। मैं बड़ी बेपरवाही से फर्श पर बैठा दीवार से टेक लगाए आर्थर को कोई मुनासिब सजा देने के बारे में गौर कर रहा था जब आर्थर दोबारा नजर आया। वो तनहा नहीं था, उसके हमरा जीन, विलियम और जिम भी थे। सब ही चिक्के चेहरों से हैरत टपक रही थी। जीन सबसे ज्यादा मगमूम और उदास नजर आ रही थी। मैं उन सब के इस्तकबाल के लिए मुस्कुराता हुआ उठा। दौलत अली, जीन ने सलाखों के करीब पहुंचकर रुंधी हुई आवाज में पूछा, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? मुझे विलियम के फोन पर अखबार के हवाले से इत्तला दी तो मुझे अपनी कुव्वत समात पर धोखा हुआ। मैं विलियम को रास्ते से लेती हुई बरकी रफ्तारी से दफ्तर पहुंची तो वहां जिम भी हैरतों में डूबा हुआ नजर आया। जिम ने फोन किया तो मालूम हुआ कि तुम्हें अदालत ले जाया गया है। जीन एक ही सांस में सब कुछ कहती चली गई। मुझे बताओ दौलत अली, हकीकत क्या है?
तुम जीन पर एतमाद कर सकते हो। विलियम की बेचैन निगाहों में भी सैकड़ों सवालात मचल रहे थे। जिम भी खासा उलझा नजर आ रहा था, लेकिन उसने जहानत से काम लिया। जीन के शानों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, फिर बड़े सुलझे हुए लहजे में आर्थर से मुखातब हुआ। क्या हम अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हारी इजाजत से किसी अलहदा कमरे में दौलत अली से कुछ बात कर सकते हैं? आर्थर ने बेबसी से शाने उचकाकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। महकमा सुरागरसानी के एक आला और जिम्मेदार अफीसरों की दरख्वास्त रद्द करना शायद उसके इख्तियार में नहीं था। हमें एक अलहदा कमरे में पहुंचा दिया गया। जीन की अज़तराबी कैफियत बढ़ती जा रही थी। उसने पूरी कुव्वत से विलियम का हाथ पकड़ रखा था। गम और तकलीफ की शिद्दतों को बर्दाश्त करने का ये भी एक अंदाज होता है। मेरे को दिल को चरका सा लगा। खुशी भी हुई कि जीन ने जिम की बजाय विलियम को अपने गम में शरीक करने को तरजीह दी। शायद इनकारानी की कोशिशें बार आबर साबित हो रही थीं। मैं भी यही चाहता था कि जीन और विलियम की शादी के मुकद्दस रिश्ते में गंध जाएं। लंदन में मेरा काम खत्म हो जाता, फिर दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं पहली फुर्सत में हिंदुस्तान की सिमत परवाज कर जाता। कानून के तकाजे और जिस्मानी रिमांड के अहकामात धरे के धरे रह जाते। कमरे में कुछ देर खामोशी का तसल्लुत रहा। जो कुछ हुआ मैंने उसे सबके दिमाग के चोलों को हिलाकर रख दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि दौलत अली, जो रूहानी कुव्वतों के हैरत अंगेज कारनामों और कमालात से कभी अपनी शोहरत का झंडा लहरा चुका था, वो चोरी जैसे मामूली जुर्म का इर्तिकाब भी कर सकता है। इखबार ने क्या कुछ लिखा मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि मशरक़ के सिलसिले में मगरबी जहन में हमेशा मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं। वो खुद गर्ज और कीना परवरत होते हैं, दूसरों को खुद से आगे निकलता देखना गवारा नहीं करते। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly